Hello, friends. Obviously, in chapter number 4, moving charge and magnetism, we discuss two parts. In the first part, we discuss topic magnetic force acting on charged particle passing through magnetic field with velocity v. F is equal to q, p cross b. After that, in part 2, we discuss the magnetic force acting on a current carrying wire of length L placed in uniform magnetic field. So today's lecture very IMP. In the last lecture, this is you can see that moving charge and magnetism part 3. In last lecture, we discussed this force, magnetic force acting on a current carrying wire of length L placed in magnetic field B. This is that most IMP formula, and if you write, we can say that magnitude form. So this is you can see that magnitude form of this force, friends. So today, first of all, we would like to start this lecture with this numerical based on this formula. सबसे पहले एक मस्त न्यूमेरिकल लेते हैं जो बोर्ड के लिए भी बन सकता है, very important. So we start with, we can say that one numerical we will solve by considering this shortcut or this formula, force acting on current carrying wire. So now what happened? Concentration required. First of all, you can see here three different situations I have represented. We will start with situation number A. You can see this type of a wire or a conductor is shown in this diagram. This is, you can see that conductor. Inside this conductor, obviously magnetic field is produced or magnetic field is applied, but magnetic field is applied in such a way that it remains parallel to the axis. You can see this is called axis of wire, or I can say that conductor, and this axis, magnetic field already along this axis. This is, you can see that magnetic field, and it is from east to west as per given data. Magnetic field inside the wire along the axis from east to west. Inside this conducting wire, there is, you can see that another wire is placed. This is, you can see that another wire. We can consider, if you think about, we can say the point to point. Then this is, you can see that you can also consider hollow, we can say that conductor. और ये जो ट्यूब जैसा ऐसा समझ सकते हो आप. This is, you can see the tube, and this is your this portion, like here you can see that, and this is, we can say that center point. This is called axis. यानी आपको मैंने ऐसे बताया है, सामने देखो तो ये axis है, this is axis, and magnetic field already along the axis, that means A, यानी ये east है, ये west है, east to west. This is the direction of magnetic field. मगर पूरा सीने से दिया है east to west magnetic field. So magnetic field. Now we would like to think about the force. This is, you can see that wire. This is your wire, and this wire carrying some current, 7 ampere current passing through this wire. Already this wire, you can see that inside the magnetic field of 1.5 Tesla. What is the, we can say that this hollow conductor or hollow, we can say that tube type pipe, it is, you can see that 10 centimeter. यानी ये जो रेडियस है पाइप का, ये डायमीटर 20 होगा, मगर यहाँ से सेंटर से ये दूरी 10 सेंटीमीटर. यू कैन सी दिस इज रेडियस. पूरा सीन वापस समझ में आ गया. ऐसा कोई ट्यूब जैसा वायर है या कंडक्टर, उसके अंदर जिसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड देयर इज, यू कैन सी दैट अ कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड. दिस वायर इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ नॉर्थ. दैट मींस नॉर्थ साउथ का हो तो ये देखो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट साउथ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, इस तरह वायर रखा है. पूरी गेम देखना हो, अच्छी तरह देखो. तो मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो जरा देखते जाना, क्योंकि ये समझ में नहीं है ऐसा बनना. ये रहा आपका, ये जिसे कह सकते हो होलो ट्यूब और कंडक्टर. इसके अंदर ये वायर ऐसे देखो, ऐसे रखा है. यू कैन सी दैट. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वायर ऐसे रखा है. ये डायग्राम हमारा है, बट आपको देखने के लिए देखो, ये अपना जिसे कह सकते हैं कि दिस इज, यू कैन सी द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रिलेटेड मेटेलिक वायर. It is already inside the tube. This is the direction of magnetic field. So one point is clear. What is the angle between magnetic field and wire? Magnetic field from east to west.
while wire you can see that north south, so north south is already perpendicular to east west. In short, this current carrying wire, I can put here one sign, this is, you can see that current carrying wire. This current carrying wire, already you can see that inside the magnetic field. So any current carrying wire is placed in magnetic field, then you know that very well force is acting on it. And what's the formula of this force? So we can say that formula of this force. So in case number A, what is the force? Magnetic force, FMAG, magnetic force acting on this wire. It is, you can see that BI, if you write in the form of vector, so I can write here IL cross B, you can see that IL cross B. So magnetic force, simply we can write ILB sine 90, reason here theta 90 degree, because I and B already perpendicular, you can see that I and B. So this is, you can see that ILB sine 90. काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में इधर कंफ्यूजन होता है कभी कभार कि सर करंट नीचे आ रहा है ऊपर फ्लो करो, डोंट वरी, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यू कैन सी दैट. नाउ वी विल राइट वन मोर पॉइंट or more step. Magnetic force, I already with you, no problem. Length of this wire, this is the question mark. Magnetic field already given, sine 90, you know that. So your next target to find the length of this wire. So obviously if you think about this structure, then you can easily get idea about the length of wire. You can see this is simply the circumference and like wire is situated here. मगर ये circumference पे नहीं है, ये अंदर ऐसे होगा, देखो ऐसे. Yes. So what is the length of this wire? Obviously it is equal to the diameter or not. This is, you can see the diameter of this circular region. So obviously we can write here length of wire, L is nothing but it is simply 2 times of radius sine 91, and we'll write reason here L is equal to 2R. So magnetic force acting, it is I, it is 7 ampere, 2 into radius 10 centimeter, so centimeter any 10 into 10 raised to minus 2, and magnetic field, this is your distance, magnetic field already 1.5 Tesla, so magnetic field already 1.5, so if you simplify then your answer would be 2.1 Newton. So this is the magnetic force which is acting on this wire, which is already placed like in this situation. So this is case number 1. In this case number 1, what is the typical point? The length of wire. Otherwise you can see that very easy. Now we will think about the second case. Second case थोड़ा हटके है. अब क्या किया जा रहा है जरा देखो. अब यही समझना है लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा है. ये आपका वायर है, ये रहा है ऐसा पूरा जो ऐसे था, you can see that. And you know that very well. This wire is placed like in this way. Inside this tube there is a metallic wire ऐसे था, और आपके सामने ऐसे होगा. देखो ये जो कहानी थी ऐसे. अब इस वायर को अंदर ही देखो, मैं अंदर का सीन बता रहा हूँ. इस पहले ऐसा था, आप देखो पहले ऐसे अच्छी तरह देखना. उसको ऐसे नॉर्थ साउथ से थोड़ा टिल्ट किया जाता है, यानी ये नॉर्थ था और नीचे का साउथ है. देखो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. अब उसको ट्यूब के अंदर ऐसा टिल्ट किया जाता है, ऐसा टिल्ट, यानी आपके सामने बताऊं तो ये नॉर्थ साउथ है. अब इसको मैं ऐसे टिल्ट कर देता हूँ, तो आप सामने से देखोगे तो आपको ऐसा क्रॉस वायर दिखेगा. ये रहा देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द वायर. यू कैन सी this is the initial position of the wire, north south. Now it is tilted in such a way that it one end is situated at northeast or southwest. ऐसा देखो टिल्ट किया, नॉर्थ ईस्ट पे आए तो दूसरा एंड इधर साउथ वेस्ट में है. इस तरह टिल्ट किया जाए तो कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है. सो नाउ पॉइंट बी, सेक्शन बी, वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन बी. जस्ट कंसंट्रेट हियर. सो आफ्टर टिल्टिंग वायर यू कैन सी दैट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट. तो पहले ऐसा था वैसा कर दिया. अब नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री, बिकॉज व्हाट इज दिस एंगल, इनिशियली इट वाज 90 डिग्री. अब इसको एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जिसे कह सकते हैं कि टिल्ट किया जाता है. सो ऑब्वियसली दिस एंगल 45 डिग्री. इन दिस सिचुएशन, अब देखो काफी स्टूडेंट्स इसमें जरा टेंशन में आ जाते हैं. कोई बोले इसमें टेंशन कहाँ पे, मैं बता दूं. सबसे पहले अपन लोग इसका मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करते हैं. सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, F magnetic, it is once again IL cross B. So IL cross B, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बाद में लिखते पहले. ये मैग्नीट्यूड नहीं है, MAG, इट इज द मैग्नेटिक. मैं FM ही रखता हूँ ना, काफी लोग लोचे कर देंगे. FM
So what is the magnitude formula? So it is ILB sin theta. इधर तो बिंदास थीटा हमने 90 डिग्री फेंका था भाई, because what is the angle between I and B? So I and B are perpendicular to each other, so we have considered 90. So tell me from this diagram, what is the angle between current carrying wire and magnetic field? Analyze. तो काफी लोग इसको समझ रहे हो वायर, तो अब इसको भूल जाओ, ये वायर नहीं है, ये मैं डेसेड लाइन बता देता हूँ। वायर अपना ये रहा, देखो ये साइड टू राइट हियर वायर और मेटेलिक कंडक्टर, you can see. And what is the length of this wire? It is, you can see that this distance, ये पूरा डिस्टेंस उसका लेंथ बनेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस लेंथ को कह देता हूँ L डैश, और आई कैन से दिस डिस्टेंस सिंपली L1, चलो L1 कह देता हूँ। So here I have to write IL1 cross B. So IL1B. What is the angle between this current carrying wire and magnetic field? Obviously 45 degree. कोई बोले ये नहीं ये लो, अरे ये भी 45. So theta here 45. So magnetic force IL1B sin 45. Why? Because theta is equal to 45 degree. Okay friends. So sin 45 we know that BI. But now the question about L1. जैसे मैंने बोला हर बार चिकना केस लेंथ. What is the length here? It is simply 2R. अब कोई बोले इसका लेंथ, तो इसका लेंथ फाइंड करना थोड़ा टिपिकल होगा। देखो कैसे, पहले तो ये वायर अंदर था तो अपन लोग जानते थे इट इज सिंपली डायमीटर, मगर अब इसको टिल्ट कर दिया ऐसे, सॉरी, सो यू कैन सी, इसको जरा ऐसे टिल्ट कर दिया, यू कैन सी। तो अब टिल्ट करने के बाद डायमीटर नहीं रहेगा, यू कैन सी दैट ये डायमीटर था, अब टिल्ट करने के बाद डायमीटर नहीं है, तो अपन लोग इसको 2R तो नहीं ले सकेंगे। तो हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर? सो टू फाइंड लेंथ we have to think about something different. Concentrate here. देखो मैंने इधर concept apply किया। सबसे पहले मैं ये triangular लेता हूँ, just check it. In this triangular, what is this angle? 45 degree. Apply sine function. So you can see that sine 45 is equal to, this is simply, you can see that R. So this is R. So opposite upon hypotenuse. So opposite यानी R and hypotenuse already L dash. So you can see this is L dash. So upon L dash. So here L dash, that means this distance already we have found. L dash is equal to R upon sine 45. तो इतना distance मिल गया. What is this distance? L dash R upon sine 45. Again concentrate here. We would like to find this entire distance, total distance. It is called L1. L1 is the length of wire after tilted, or I can say the tilted it northeast direction. So first of all I would like to find this portion only. What is the length of this portion? To find the length of this portion, we have applied here some concept of trigonometry. In this right angle triangle, this one is R, so this is R. In this triangular, sine 45 is equal to opposite upon hypotenuse. Opposite R, hypotenuse L dash. So L dash is equal to R upon sine 45. तो अपने को L dash मिल गया. But exactly we have to find L1. So what is the L1? L1 is nothing. It is simply 2 times of L dash. So just check it. L dash और ये भी क्या है? L dash. So here we'll write magnetic force Fm is equal to I. L1 की जगह मैं लिख देता हूँ 2L dash into B sin 45. कोई बोले सर वैल्यू sin 45 की अभी कुछ मत रखो, बिंदास, just check it, analyze this diagram and then we move. ओके, अब अपन लोग इसमें जिसे कह सकते वैल्यू रखे, सो Fm I, मैं देखो अभी भी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, जस्ट चेक इट। आई वुड लाइक टू सेट अप L dash. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L dash? इट इज सिंपली R upon sin 45. So instead of L dash, R upon sin 45 multiply by B sin 45. Ready? देखो ऑटोमेटिकली sin 45 cancel. So what is the final answer? So magnetic force acting on this tilted wire, it is I multiply by 2R multiply by 2R into B. तो चेक करो, ये तो यही है, यही यानी पहले वाला देखो I 2R B. तो अब इसका कैलसी क्या करें, अपन लोग जानते हैं कि सेट अप द वैल्यूज, then answer would be same, 2.1 Newton. So this is, you can see that force acting on this wire. In short, this wire initially was situated, we can say the north south. Now it is tilted by, we can say that 45 degree or in northeast direction. Then don't worry, it experiences, we can say the same force
नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सेकंड केस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, डोंट फॉरगेट वेरी आईएमपी। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी चेक करने लायक। देखो ये अपना वापस ये पोर्शन, यानी ये जो ड्रॉ किया वो, इसमें ये वायर रखा हुआ है, ये रहा, तो ये वायर ये रहा एग्जैक्टली। वायर देखो अभी कहाँ पे, वायर एग्जैक्टली सिचुएटेड अलोंग इट्स डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर रीजन। तो ये सर्कुलर रीजन के डायमीटर में देखो ये रहा वायर, चेक इट। थर्ड केस में शुरू कर रहा हूँ ये। अब ये लोग कहते हैं ये वायर को भले इसकी लेंथ कम हो जाए मगर इसको ऐसे यहाँ पे लेके आके रख दो ऐसे। तो देखो यहाँ से वायर को यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना सेंटीमीटर नीचे ले गए। सो यू हैव टू डिस्प्लेस दिस वायर, यू कैन सी दैट बाय 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये जो सेंट्रल रीजन में वायर था उसको 6 सेंटीमीटर नीचे ले जाओ। तो इसके दोनों एंड सब यहाँ पे टच हो रहे। देखो कोई बोले सर वायर की लेंथ छोटी हो गई, यस वही वायर नहीं है, वायर अब दूसरा है, डोंट फॉरगेट। क्योंकि यही वायर होता तो ऐसा पोर्शन थोड़ा बाहर जिसे कह सकते निकल जाता है, ऐसा नहीं। वो लोगों ने कंडीशन दी की है, डेटा में बाद में देता हूँ, डोंट वरी, कि अगर ये वायर को 6 सेंटीमीटर नीचे ले जाए और उसके बाद उसके दो एंड इस तरह सर्कमफरेंस को टच होते हो, तो ये सिचुएशन में अब ये वायर है, दिस इज यू कैन सी दैट योर मेटेलिक वायर एंड दिस इज योर करंट कैरिंग वायर। इसको नहीं, अब ये पोर्शन को या 6 सेंटीमीटर नीचे ले जाया जाए, यानी साइड में इस साइड, ओके। देन व्हाट हैपन, यही क्वेश्चन कुछ लोग इस तरह भी सोल्व करते हैं कि देखो ये वायर यहाँ पे था, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, अब ये इस तरह और इसको नीचे ले जाए ऐसे। तो यानी कि ये डायग्राम इधर से इधर, डोंट वरी, अपन लोग ऐसे लगे ताकि समझ में आए इसलिए, ओके। तो अब ये सिचुएशन में कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। चलो पहले आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके। दिस इज योर मेटेलिक वायर, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट्स लेंथ, but it is already inside the magnetic field of 1.5 Tesla. It is also carrying the same current 7 ampere. तो इस वायर में से 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप जानते हो, ये देखो ये वायर इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दैट मींस परपेंडिकुलर, डोंट वरी। तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर जिसे कह सकते कितना मैग्नेटिक फोर्स लगे वो फाइंड करना है। वीडियो पॉज करो और इधर अप्लाई करो। वापस मैंने बोला है तीन केसेस में एक ज केस चिकना, वो है वायर की लेंथ। इधर 2r थी, इधर ऑटोमेटिकली 2r आया, और इधर ये लेंथ आपको फाइंड करना है। कौन सा तिकड़म अप्लाई करना है वो आपको सोचना है। स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अपन लोग ये हटा देते हैं एंड नाउ वी ट्राई टू सॉल्व, वी कैन से दिस क्वेश्चन। सो हियर ऑब्वियसली यू कैन सी what happened here. This is, you can see that your target. So in this situation magnetic force again Fm is equal to IL cross B. Here we will write length L2, suppose L2 कह देता हूँ, ये जो पूरा लेंथ है L2 कह देते हैं अपन लोग। So L2 cross B, so Fm is equal to IL2B sin 90, because here you can see that this is the length, ये लेंथ ऐसे है जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छी तरह देखो ये वायर अपना, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, जबकि ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे है। सो परपेंडिकुलर साइन 90 ऑब्वियसली 1। अब इधर वापस प्रॉब्लम है L2 का, तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए आई वुड लाइक टू फाइंड दिस लेंथ। ऑब्वियसली हियर यू कैन सी दिस डिस्टेंस 6। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज ऑब्वियसली रेडियस, क्योंकि ये सर्कल है देखो। तो ये डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए d कह देता हूँ, स्मॉल d यार, तो अपने को x मिल जाए कि नहीं। सो हियर यू कैन सी दैट from diagram I can write x is equal to under root r square minus d square. For a simple I have applied Pythagoras, particularly in this triangular x square plus d square is equal to r square. So what is the x? It is under root r square minus d square. So x is equal to under root r square. R is the radius. What is the radius? 10. So here 100. D is the distance. This distance, it is 636. So under root 64, that means 8 सेंटीमीटर। मगर हरिडली 8 सेंटीमीटर लेंथ मत कंसीडर करना, हो तो इतना पोर्शन है। सो टोटल L is nothing but it is the x plus x. So L2 is equal to simply 2x. So here Fm is equal to I L2, that means 2x
into B sine 90 already 1, so no requirement. So now I, that means 7 ampere, X here is 8, you can see that 8, but 8 into 10 raised to minus 2 because of centimeter, and B already 1.5. If you simplify, then there is 1.68 Newton. This is, you can see that answer of this force. So magnetic force acting on this wire, if it is displaced by 6 centimeter, it is 1.68 Newton. तो मस्त क्वेश्चन था, और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 4.23, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज का 23rd नंबर क्वेश्चन है. जस्ट यू कैन सी दैट, चेक इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, एनालाइज. इधर जिसे कह सकते हैं न्यूमेरिकल को समझना, ये वायर को 6 सेंटीमीटर अंदर, भले उसकी लेंथ छोटी हो जाए इस तरह, मगर 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के बाद रखा है ताकि ये जो वायर है अब उसके ऊपर कितना फोर्स लगे. तो अपने को फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है. हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम लेंथ का ये तीन केसेस में मैंने बोला, एक ज केस चिकना केस है लेंथ. इधर लेंथ होगा सिंपल डायमीटर, इधर टिल्टेड के लिए हमने अप्लाई किया L dash is equal to 2r upon sin 45, you can see, and here we have applied concept of 2x, but to find x, Pythagoras. So simple mathematics, nothing. So this is very very IMP numerical, already we have discussed, just check it, analyze it please one time. 4.23. ओके फ्रेंड्स, नाउ विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट. अब अपन लोग कल का होमवर्क यानी कि पार्ट जिसे कह सकते हैं कि 1 क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, उसको याद करो. पार्ट 2 यानी ये जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने IL क्रॉस B, वो फॉर्मूले रिलेटेड एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ पार्ट 2 आई गेव अ क्वेश्चन, एंड नाउ वी वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड देन वी स्टार्ट थर्ड टॉपिक, एंड दिस थर्ड टॉपिक आल्सो वेरी वेरी IMP. So just concentration required. In last lecture, it is given that already current in the direction of x-axis, and magnetic field B is equal to B naught I cap plus B naught J cap plus B naught K cap, ऐसा दिया था. So what is the force? So you know that magnetic force Fm is equal to IL cross B, but IL or current already in the direction of x-axis or length along x-axis, so I can write here IL I cap cross B already with us B naught I cap, B naught J cap and B naught K cap. Now simple cross multiplication, cross product, ये simple multiplication नहीं है. First of all I cross I, anybody 0, so first point 0 plus, era plus. Now I cross J ना याद आया तो मैंने बताया ऐसा आपको सर्कल बनाना, इधर I, इधर J, इधर K, और आपको जाना है इस तरह. So I cross J, K cap, J cross K, I cap, K cross I, J cap. So here you can see that I cross J, so I cross J K cap. So I will write IL, then there is B naught, and what is this I cross J, so it is K cap. Ready? Now third, now this I cross K cap, here I cap cross K cap. तो देखो कोई बोले सर आप तो हम तो ऐसे ही जा रहे थे, I cross J K cap, J cross K I cap, K cross I J. तो K cross I J, so I cross K उल्टा, अगर उल्टा जाओ तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, सो I cross K जाओ तो माइनस J के पाएगा, यू कैन सी दैट माइनस J के. सो हियर सिंपली प्लस IL B naught I cross K, दैट मींस माइनस J के पर. सो फाइनल आंसर इस दोनों में से देखो IL B naught कॉमन, रिमेनिंग पोर्शन K कैप माइनस J कैप. दिस इज योर फोर्स. बट अगर आपने अच्छी तरह डेटा रीड किया तो मैंने पूछा था मैग्नीट्यूड. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स? सो IL B naught, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको ना आए तो मतलब मैंने बोला है डोंट थिंक अबाउट नीट JEE. दिस इज, यू कैन सी दैट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये I कैप और I कैप कोफिशिएंट 1 -1 मैग्नीट्यूड फाइंड किए. सुपर. सो दिस इज योर आंसर,
ये आंसर आता हो तो वेरी गुड, √2IL/B0. दिस इज द होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स वी स्टार्ट, वी कैन से द थर्ड टॉपिक. वेरी इंटरेस्टिंग. आज इसका बेस बनाएंगे थ्योरेटिकली, और इसके बाद जो पार्ट 4 है वो फुल्ली जेडबल नीट, जबरदस्त, बराबर. तो सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि आप ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लो, जिसको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो देन वी स्टार्ट. Okay friends, so now we start. You can see next topic, very IMP, and be alert. This is simply the motion in a magnetic field, motion of charged particle in magnetic field. So I will remove this part 3 also. So concentration required. This is, you can see the topic, motion of particle in a magnetic field, most IMP. First of all, you know that very well, any charged particle passing through magnetic field, then you know that very well force is acting. If you remember first part, in first part we have discussed, if charged particle in rest condition or any stationary charged particle inside the magnetic field, then there is no effectiveness of magnetic field in producing force. Magnetic force becomes effective only and only for moving charged particle. तो अपन लोग एक चार्ज पार्टिकल है कोई, उसको अब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे, मगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसे यानी कि एंटर हो, उसके कुछ अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टाइल है. सबकी स्टाइल होती है. मेरे मुताबिक मैं एक बार स्टाइल को अच्छी लैंग्वेज में स्टाइल बोलता हूँ, आप जानते हो. तो हर एक की स्टाइल होती है. तो अपन लोग इधर भी 3 डिफरेंट स्टाइल देखने वाले. दैट मीन्स ये जो पार्टिकल है, दिस इज चार्ज्ड पार्टिकल. ये चार्ज्ड पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेगा, मगर मैंने बोला हर एक की एंट्री लेने की एक स्टाइल होती है. तो अपन लोग हर एक स्टाइल को देखते हैं. सबसे पहला अपन लोग शुरू करते हैं फर्स्ट केस, वेरी वेरी IMP. आई विल राइट हियर धूम. चैप्टर नंबर 4 का ये जो सेशन अब शुरू होने जा रहा है, वो याद रखना MCQ न्यूमेरिकल्स में कितना धूम मचाता है. JEE नीट के लिए बेहतरीन पॉइंट, सो बी अलर्ट अबाउट इट. फर्स्ट केस, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल, और आई कैन से वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, अपने को वेलोसिटी को तवज्जो देनी है. व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल remains perpendicular to magnetic field. देखो चार्ज पार्टिकल एंट्री लेगा, मगर किस तरह, चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो. तो जरा देखते हैं अगेन. दिस आर द, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब आप इस क्रॉस तो सब अच्छी तरह जानते हो. दिस क्रॉस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. देखो ऐसे अंदरूनी पड़ जाए. Inside this magnetic field, you can see now this is magnetic field of intensity B. Don't worry. Uniform magnetic field. Don't forget uniform magnetic field. That means intensity remains same. अब ये magnetic field है. Magnetic field देखो ऐसे, अच्छी तरह देखो ऐसे. अब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब यूं देखा जाए तो ये वेलोसिटी है, ये रहा वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड. पहले में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड और पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहे हैं, मगर मैं आपको बताने के लिए ऐसे बता रहा हूँ. मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल, चेक द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर. तो अब ये पार्टिकल की एंट्री देखो. जैसे ही पार्टिकल, जिसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे एंट्री ले रहा है, देखो इसका वेलोसिटी. तो ये पार्टिकल जिसे कह सकते हैं कि ऐसे मोशन करता होगा. ये कौन सी मोशन है? दिस इज, यू कैन सी दैट सर्कुलर मोशन स्टार्ट. So particle performs circular motion. If you consider at any state, suppose this is the position of particle, this is the direction of velocity, obviously, and the magnetic field going inside. This is, you can see that magnetic field going inside, then force always remain perpendicular to it. This is the direction of force. देखो ये magnetic field inside. अच्छी तरह देखो तो आपको पता चले मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा है, मतलब ये अंदरूनी पार्ट में है. ओके, तो इसलिए सपोज यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड
और ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसको जिसे कह सकते हैं परपेंडिकुलरली देखने का है, तो फोर्स भी जिसे कह सकते हैं इसको परपेंडिकुलरली लगेगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी इस तरह है, चेक करना बराबर, तो फोर्स लगेगा इस तरह। इन शॉर्ट फोर्स है वो जिसे कह सकते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसा मैंने एक सिचुएशन बताया है, बाकी आपको ऐसा हर एक सिचुएशन ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। यू कैन सी दैट दिस इज द मोस्ट टाइम पॉइंट। तो हर एक जगह पे तीन कहानी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता होगा, ये अंदर जा रहा है, वेलोसिटी जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग ये देखो इस तरह है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट डायरेक्शन में समझ में इधर ना है, बिंदस आपको याद रखने का है, एफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जस्ट चेक इट, यू कैन सी दैट हियर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो। अब क्या है इसमें, तो बोले सर्कुलर मोशन कैसे शुरू हो गई, इसका डिस्कशन करना है। सो व्हेनेवर चार्ज्ड पार्टिकल यू कैन सी दैट एंटर, then this is the direction of velocity, this is the force father F is equal to mother ma, you can see. So अब F की जगह में A लिखूं acceleration, so you can see whatever the charged particle checked, we can say that direction of the acceleration and velocity of this charged particle, acceleration and velocity are perpendicular to each other, fundamentally strong होना चाहिए, standard 11 in the situation in which velocity and acceleration are perpendicular, velocity and acceleration are perpendicular to each other, then you know that very well only and only direction of velocity is changed while magnitude of velocity remains constant. You know that whenever acceleration and velocity both are perpendicular to each other, then velocity of particle is changed because of change in direction of velocity. Don't forget the magnitude of velocity of particle remains constant. तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है, याद करो चैप्टर नंबर I can say that fourth, after projectile motion, circular motion, uniform circular motion. What is the definition of uniform circular motion? You know that very well, any particle performs circular motion along circular path with constant velocity or constant speed, with constant speed. So constant speed is nothing but the magnitude of velocity. So don't forget acceleration perpendicular to velocity, then always direction of velocity changes. Check it, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये इधर आए, देखो तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इधर आए, इधर कहाँ पे भी, बट एट एनी पॉइंट अलोंग दिस सर्कमफरेंस velocity changes due to the change in direction of velocity, but its magnitude remains same. यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5. In short, speed remains constant, but magnitude of velocity, speed यानी magnitude of velocity remains constant, but direction of velocity continuously changing. You can see that, and this is, you can see that the best point about the circular motion. If acceleration is perpendicular to velocity, then always particle performs circular motion. So one point is clear from today. Whenever charged particle, or I can say velocity of charged particle remains perpendicular to magnetic field, then don't forget particle always performs circular motion. Most IMP punch. Anytime velocity of charged particle परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह एंट्री ले ताकि चार्ज्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहे, तो चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चक्कर 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 चक्कर, यू नो दैट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. मोस्ट आईएमपी. तो काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आप ही स्टैंडर्ड 11 में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि टू परफॉर्म चक्कर चक्कर मोशन यानी सर्कुलर मोशन अ स्पेशल फोर्स इज नीडेड. तो ये बंदा भी अगर सर्कुलर मोशन करता हो तो इसको भी एक स्पेशल फोर्स चाहिए. टेल मी द नेम ऑफ दिस फोर्स. हियर अ स्पेशल फोर्स इज नीडेड टू परफॉर्म चक्कर चक्कर मोशन. यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव आइडिया, इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. और मैंने कितनी बार बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक अ गॉड. और गॉड आपके सामने सीधे सीधे सामने नहीं आते, वो अलग अलग डिवोटीज भक्त के रूप में आते हैं. जैसे कि यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देन ग्रेविटेशनल फोर्स,
available in the form of centripetal force. Whenever you are applying brake, whenever you are taking sharp turn at any circular path, then also frictional force. तो इधर ये चार्ज्ड पार्टिकल को चक्कर चक्कर घूमने का तय हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो टेल मी here to perform chakkar motion centripetal force required, it is available in the form of magnetic force. So we start. So here the required centripetal force is available to charged particle, available to charged particle, but in the form of magnetic force. So I can write centripetal force. कहानी शुरू हो गई, एक साथ बहुत सारे तीर छूटने वाले. डोंट फॉरगेट centripetal force here is equal to magnetic force. Centripetal force, you know that mv square by r. Magnetic force q into v cross b यानी qvb sin theta. याद है qvb sin theta. But what is the value of theta? Here v and b perpendicular, so अपन लोग थीटा लेंगे 90, सो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और इधर वी को धीरे से हटा दे, सो एम बी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी. रीजन लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो इसके ऊपर से आर फाइंड करें, सो आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, और ये बन गया मार्वेलस इक्वेशन. सो आई विल राइट हियर दोनों इक्वेशन. What is the, we can say that importance of this equation? So this equation gives idea about the radius of the circular path of charged particle. तो फिक्स कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर घुसे, यानी अगर इस टाइल परपेंडिकुलरली हो तो वो जिसे कह सकते चक्री खा जाएगा. इतना याद रखने का, अगर इस टाइल परपेंडिकुलर हो कोई भी चार्ज पार्टिकल की तो चक्री खाएगा, मतलब वो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करे तो हम लोग तो जानते हैं कि उसका रेडियस कुछ हो. सो व्हाट इज द रेडियस? दिस इज, यू कैन सी द सेंटर, एंड व्हाट इज द रेडियस? आर. और अब पता चला ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. और ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखो, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स इन शॉर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स. यू नो दैट इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. तो दिस इज द मोस्ट IMP formula we have derived. This is called formula for radius of circular path of any charged particle enters perpendicularly. Superb. तो पहला पढ़ाओ मोस्ट IMP. और इक्वेशन के ऊपर से मुझे बताओ, this radius of circular path depends upon which factors? Charge, obviously, magnetic field. मगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कांस्टेंट हो तो कौन से फैक्टर है? चेक इट. इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, देन दिस रेडियस डिपेंड्स अपॉन, काफी लोग बोलेंगे मास, काफी लोग बोलेंगे वेलोसिटी, बट अल्टीमेटली mv that means the momentum. Superb. So keep in mind very important word, this radius of circular path totally depends upon momentum. Very important. अब अपन लोग इसमें जाते हैं, सेकंड पढ़ाओ. रेडियस फाइंड किया, रेडियस के ऊपर से मुझे अब इसका जिसे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में ये कितने चक्कर खाएगा ऐसा. सो नाउ यू लाइक टू फाइंड फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल. मगर ये कौन सी स्टोरी चल रही है? जब चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हो तब की कहानी चल रही है. ओके. सो अपन लोग तो जानते हैं ओमेगा, और v इज इक्वल टू सिंपली ओमेगा आर. चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन. सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर. सो अपन लोग का जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू mv अपॉन qb. इसमें v की जगह नाउ v इज इक्वल टू, सो r इज इक्वल टू v की जगह मैं सीधा लिख देता हूँ ओमेगा r. Can see that here are we there. Ready? So simply r cancel. So I can write qb इस साइड आ जाए तो qb is equal to m omega यानी 2 pi f.
frequency related formula. So what is the frequency of a charged particle? QB upon 2 pi m. This is धूम equation. चलो वापस धूम सीरीज स्टार्ट. दिस इज धूम पार्ट 1. जबरदस्त. दिस इज यू कैन सी दैट धूम पार्ट 2. ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम. सो ये सब धूम सीरीज हर बार चलती रहती है. दिस इज द मोस्ट टाइम इक्वेशन. एंड टेल मी, दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन मोमेंटम और नॉट? नॉट. यू कैन सी ओनली मास इज प्रेजेंट. बस ये थीम याद रखनी है. एनी चार्ज्ड पार्टिकल, सुनना बराबर, any charged particle enters perpendicularly or velocity of charged particle perpendicular to magnetic field, then number 1, charged particle performs circular motion. Number 2, its radius given by equation mb by qb. In short, radius depends upon momentum, but its frequency is independent of momentum. यानी कि momentum change होगा तो सिर्फ radius affect होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़खानी होगी नहीं. ये बनेगा फ्यूचर में एक थियरी है साइक्लोट्रॉन, इसी चैप्टर में उसका प्रिंसिपल. वेरी आईएमपी. सो प्रिंसिपल वर्क्स ऑन दिस, वी कैन से साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल. द रेडियस इज डिपेंड, और आई कैन से दैट डिपेंड ऑन मोमेंटम, बट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटम. मोस्ट आईएमपी. तो हमने सेकंड पढ़ाव किया. तो अब अपन लोग डिस्कस करने वाले थर्ड पॉइंट वेरी आईएमपी. सो हियर नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायग्राम एट प्रेजेंट टाइम, so I can remove it, don't forget, because diagram only indicates circular motion. Now next point, third point, periodic time. What is the periodic time of this charged particle? The periodic time तो frequency से आराम से मिले. So periodic time T is equal to reciprocal of frequency, यानी कि 2 pi m upon qb. This is also धूम formula. This is your धूम part 3, you can see. So periodic time, it is 2 pi m upon qb, frequency qb upon 2 pi m, and the radius of the circular path mv upon qb. Masterpiece. This is also called cyclotron frequency. We will consider in future, don't worry. तो दोस्तों ये मुझे पंच थे जोरदार, मुझे ये चकाचक चाहिए, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ. इतने पॉइंट्स याद रखने के. नंबर 1, एनी चार्ज्ड पार्टिकल, और आई कैन से वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल remains perpendicular to magnetic field in motional state. If any charged particle or velocity of charged particle remains perpendicular to magnetic field, then number 1, particle performs circular motion. Number 2, radius of this circular path mb upon qb depends upon momentum. In short, radius is affected by momentum. Number next, frequency of this circular path, frequency of this charged particle to perform circular motion, it is qb upon 2 pi m. It is independent of momentum. And periodic time of this particle, it is 2 pi m upon qb. It is also independent of momentum. Most IMP, these are the 3 very important punches about the velocity remains perpendicular to magnetic field. तो दोस्तों हमने पहला पढ़ा मोशन का डिस्कशन किया, यानी पहली स्टाइल. फर्स्ट स्टाइल में वेलोसिटी रिमेन्स परपेंडिकुलर, देन यू नो दैट पार्टिकल है वो चक्री खा जाता है. अब आता है दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर पहले इसको एक बार देख लो चित्र. Ready? Now we'll think about one more. So very important point we have discussed. Now you can see that the next point, when velocity of charged particle parallel or anti-parallel to magnetic field, velocity of charged particle parallel or anti-parallel to magnetic field. चलो, यानी वेलोसिटी अगर b को पैरेलल हो या b को एंटी पैरेलल हो, so what is the, we can say that this is charge particle, you can see that. Okay, और magnetic field a direction में, just check it. Now this particle entered with, we can say that with velocity v. This is charge particle, velocity v, magnetic field already b. So both are parallel to each other. या suppose particle इस साइड जाता हो, then anti parallel. So parallel or anti parallel, what's the magnetic force acting on it? Magnetic force Q
V क्रॉस B। चलो इक्वेशन में क्या गलती है? ऑब्वियसली इधर वेक्टर, हाँ। सो FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, क्रॉस हटाओ, थीटा लाइए, देखो हमने। सो साइन थीटा, बट हियर व्हाट इज द एंगल बिटवीन V and B? If V and B are parallel, then theta 0 degree. If V and B are anti-parallel, opposite direction, then theta 180 degree. So here theta 0 degree or theta 180 degree. In this situation, if you set up sine 0, 0, sine 180, 0, so magnetic force experienced by this charged particle is 0. अगर ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा हो और कोई फोर्स ना लगे, क्या होगा? Particles you can see that performs motion without any deflection. तो इन द सीधी डायरेक्शन में जाएगा. That means when velocity of charged particle is parallel or anti-parallel to magnetic field, then particle performs linear, or I can say that along straight line, linear motion, or motion along, we can say that straight line, सीधा ऐसे चला जाएगा क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है. So this is, you can see that second case. Once again in first case, if velocity is perpendicular to magnetic field, chakkar. If velocity is parallel or anti-parallel to magnetic field, then straight line or linear motion is performed by particle. अब आता है तीसरा जो थोड़ा हटके है. This is the most time point for this lecture. अगर पार्टिकल इस तरह स्टाइल मारता है ताकि ना तो 0 डिग्री एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना तो 180 डिग्री एंगल बनाए, और ना तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, यानी ना तो जिसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, और ना परपेंडिकुलर हो, ऐसी सिचुएशन में यानी कोई आर्बिट्ररी एंगल बनाते हुए घुसे है तो क्या होगा? तो देखो ये जोरदार पॉइंट है. नाउ बी रेडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. बट दिस इज, यू कैन सी दैट मोस्ट आईएमपी. रेडी, जस्ट नीड पेन करके एक बार कर दीजिए अपन लोग. ओके, सो अपन लोग इधर लिखेंगे व्हेन initial velocity or velocity of charged particle making an arbitrary angle with magnetic field. चलो, ना तो 90 डिग्री, ना तो 0 डिग्री, ना तो 180 डिग्री. अब कहानी जोरदार. तो उसको समझने के लिए अपन लोग एक डायग्राम कंसीडर करते हैं. जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. एकदम पप्पू टाइप है मगर समझ लो. एक्स, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक. तो मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये लाइन बता रही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. ओके, अब हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये चार्ज्ड पार्टिकल जिसे कह सकते हैं कि यहां से एंट्री लगा रहा, देखो ऐसे. दिस इज चार्ज पार्टिकल. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मतलब लोगों को समझ में ना आए तो मैं जिसे कह सकते बता रहा हूँ, ऐसे एंट्री ले रहा है ऐसे. अब यहाँ पे काफी लोगों को समझ में नहीं आता, मगर एक डायग्राम से पता चल जाएगा. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, रेडी. अब ये पार्टिकल है ऐसे यूं, और ये घुसा ऐसे. ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंट्री ले रहा है. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, उसमें इस तरह एंगल हुआ. तो कुछ कितने एंगल पे देखो पता नहीं है, कोई जिसे कह सकते थीटा एंगल पे एंट्री ले रहा है. ये रहा, देखो वापस देखो. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्टिकल गेट एंटर लाइक इन दिस वे. सो देयर इज सम एंगल इज फॉर्म और नॉट. दिस इज, यू कैन सी दैट थीटा एंगल. थीटा एंगल हियर, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 degree. So then what happened? Then this particle, what is the velocity of this particle? V. So particle entered with, we can say that velocity V, but making theta angle with the direction of magnetic field. तो इधर क्या होगा? अगर परपेंडिकुलरली एंट्री लेता तो चक्री खा जाता, यानी चक्कर. अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल होता तो सीधा चला जाता.
ना तो इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल है, ना तो परपेंडिकुलर, यानी अब जिसे कह सकते क्या हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में, यानी इन दिस सिचुएशन वी कैन गेट टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। जस्ट चेक इट, ये जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। नंबर वन, दिस इज v पैरेलल, and this is, you can see that number two, this is v perpendicular. Check it, this is v perpendicular, this is v parallel. v parallel क्या होगा, it is simply v cos theta, और v perpendicular क्या होगा, it is v sin theta, you can see. बट नेचुरल अपन लोग जानते हैं, मगर ये कंपोनेंट देखो, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब इसको भूल जाओ। अब समझो ये चार्ज पार्टिकल ले रहा, ये जो चार्ज पार्टिकल है उसकी एक ये वेलोसिटी समझो पैरेलल, तो ये वेलोसिटी के साथ अगर पार्टिकल एंट्री ले तो चेक इट, दिस वेलोसिटी ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन शॉर्ट दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल। व्हाई इट इज कॉल्ड v पैरेलल, बिकॉज़ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा ऑलरेडी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल हो तो क्या हो, तो फोर्स जिसे कह सकते हैं, अपन लोग जानते हैं कि इस तरह लगे कि बॉडी कौन सी या पार्टिकल कौन सा मोशन करेगा, लीनियर, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, मगर इधर एक बंदा और जस्तजू चल रहा है, कौन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। सो दिस वेलोसिटी v sin थीटा, और आई कैन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट चेक इट, it is perpendicular to magnetic field, that's why it is called v perpendicular, and velocity remains perpendicular to magnetic field. If velocity of charged particle remains perpendicular to magnetic field, then what happen, then particle performs circular motion. So here two motions are possible. Number one, linear motion due to this parallel component of velocity. Number two, circular motion ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी पार्टिकल, यानी कभी कभार आपके घर में भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैंने देखा है काफी कुछ लोगों के घर पे ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स और काफी लोगों का अलग अलग होता है। मुझे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं मुझे सर ये बनना है, तो अपन पूछते क्यों, तो मेरे दादा ने बोला है मुझे ये बनना है। अब दादा ने बोला बेटे तेरे डॉक्टर बनना है, या ये ग्रुप हो तो ऐसे बोले बेटा इंजीनियर बनना है, तो डैडी बोले नहीं बेटा तेरे को आईएएस बनना है, तो मम्मी कुछ और ही कहती हो। तो ऐसी सिचुएशन में बंदा है वो ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन से या अलग अलग जिसे कह सकते हैं कि टॉलरेंस पॉइंट से दब जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इधर पार्टिकल भी कंफ्यूज हो गया, क्यों, क्योंकि एक वेलोसिटी कह रहा है कि तू सीधा चल, कौन कह रहा है सीधा चल, पैरेलल। एक वेलोसिटी बोल रही नहीं नहीं तेरे को तो चक्कर चक्कर खाने का है, चक्री खाने का, कौन चक्री खाने का बोल रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, now you can see that this charged particle under the effect of two velocities parallel and perpendicular, so this particle performs both types of motion, और ये दो motions perform हो तो ना तो सीधा जाएगा ना तो चक्कर, यानी दोनों चक्कर सीधा ऐसे। और ऐसी सिचुएशन में ये पार्टिकल देखो जैसे जिसे कह सकते हैं एंट्री लगाए गए ऐसे, so this particle simply you can see performs this type of motion. And what is the name of this motion? It is simply called helical. You can see this is called helix path. So helical motion is performed by this charged particle. देखो, because of this perpendicular, it performs circular motion, and because of this parallel component, it performs linear. पहले यहाँ था चक्कर खा के इधर, अब यहाँ से चक्कर खा के इधर, फिर यहाँ से चक्कर खा के इधर, तो चक्कर चक्कर भी घूम रहा है और साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा है। देखो लीनियर भी आगे बढ़ रहा है। So this is circular, linear, circular, linear, circular, linear, circular, linear. So here the combination of these two motions, circular and linear, it's simply called helix, or I can say helical motion. So what is the nature of this motion, or I can say the nature of motion of the particle? Whenever initial velocity of particle makes arbitrary angle with magnetic field, then particle performs obviously helical motion. तो दोस्तों तीन कहानियां। नंबर एक, if velocity perpendicular to magnetic field यानी 90 डिग्री,
then chakkar. If velocity parallel to magnetic field or anti-parallel, then seedha. But whenever any arbitrary angle, then chakkar as well as सीधा यानी कि हेलिकल मोशन मोस्ट आईएमपी। तो ये दोस्तों हेलिकल, तो v पैरेलल कंपोनेंट्स यानी v cos थीटा कंपोनेंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लीनियर मोशन एंड v sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर चक्कर मोशन। तो ऐसे हेलिकल मोशन कहते हैं। इस हेलिकल मोशन का अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि अब पीरियडिक टाइम फाइंड करें या जिसे कह सकते हैं कि रेडियस फाइंड करें, सब मिल सकता है। तो ये रेडियस फाइंड करना हो तो अपन लोग का तो फॉर्मूला है रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, मगर इधर रेडियस के लिए v परपेंडिकुलर ही आएगा क्योंकि चक्कर मोशन तो किसके कारण है, v परपेंडिकुलर। तो अपन लोग फॉर्मूला लिखिए r mv परपेंडिकुलर इट इज v sin थीटा upon qb. This is your, we can say, the radius of the particle performing helical motion. कोई बोले सर वो तो बराबर है, अपने रेडियस फाइंड किया, अगर इसका पीरियडिक टाइम फाइंड करना हो सो नो प्रॉब्लम। पीरियडिक टाइम फाइंड करने के लिए अपने पास कंसेप्ट है जो हमने फ्रीक्वेंसी वाला फंडा अप्लाई किया था, v वो वाला तो अप्लाई कर सकते हो t। तो अपन लोग 2 पाई m अपॉन qb ये फॉर्मूला डिराइव किया था, मगर इसमें जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इस तरह रहेगा क्योंकि हमारे पास तो जानते हैं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट तो था ही नहीं, तो इधर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो पीरियडिक टाइम रिमेन सेम 2 पाई m अपॉन qb, और अपन लोग जैसे फ्रीक्वेंसी तो वो भी रहेगी सेम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट ना तो पीरियडिक टाइम है ना तो फ्रीक्वेंसी। अब अपन लोग फाइंड करेंगे पिच। कोई बोले पिच क्या है? पिच का मतलब देखो अब अच्छी तरह, यहाँ से मोशन शुरू हुई और मैं इधर ड्रॉ करता हूँ क्योंकि अब इसमें तो आपको ये रहा, देखो अब यहाँ से मोशन शुरू हुई और यहाँ पे आ गया। अब एक सर्कल कंप्लीट कहाँ से काम होता है, देखो इफ यू थिंक अबाउट, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे वापस आए, तो ये पिच है, या इधर से ये डिस्टेंस को भी पिच कहते हैं। यू कैन सी, ये बेस्ट ये पिच है, दिस इज यू कैन सी द पिच, आई विल राइट हियर पिच। सो लिनियर डिस्टेंस between two consecutive circular path or center to center of, you can see the two circular path, this is called simply pitch। तो अपने को pitch का फॉर्मूला फाइंड करना है। pitch that means simply linear distance traveled by charged particle। तो अपन लोग तो pitch linear distance, ओके ये रेडियस को कभी कभार RH भी कहा जाता है, मैं बता देता हूँ। RH का मतलब है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, यानी ये RH है, देखो ये सर्कुलर पाथ है ना, सो दिस इज यू कैन सी दैट RH, ये भी RH यू कैन सी, दिस इज यू कैन सी दैट RH मतलब यही होगा स्मॉल, डोंट वरी। सो पिच मतलब लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड तो अपन लोग जानते हैं v cos थीटा, क्योंकि इधर तो v पैरेलल ही लेना है, जैसे इधर परपेंडिकुलर, तो लीनियर डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पांसिबल है, पैरेलल। टाइम अपने पास ये रहा 2 पाई m अपॉन qb। कोई बोले वो तो पीरियडिक टाइम है, आप तो फेंक कर रहे हो, मैं पीरियडिक टाइम लिख देता हूँ। कोई बोले और फेंक, हमने बोला था आपने पीरियडिक लिख दिया। अरे वो पीरियडिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से शुरू करके वापस पिच टू पिच, यहाँ से आकर यहाँ पे आने के लिए एक ही सर्कुलर पाथ हुआ ना, तो एक साइकिल का टाइम क्या कहते हैं, पीरियडिक टाइम, डोंट वरी। तो ये जो पिच का फॉर्मूला है, दिस इज यू कैन सी दैट पिच, इट इज 2 पाई mv upon qb cos theta. This is the most IMP formula for MCQ numericals. So friends, we have discussed the supreme case, you can see pitch and helix and helical path. So one point is clear, if any charged particle get entered in magnetic field, then it can perform 3 types of motions, or I can say that वो 3 टाइप की स्टाइल मार सकता है। नंबर 1, if velocity of charged particle is perpendicular to magnetic field, what happen? Velocity perpendicular to magnetic field, particle performs circular motion, then what is the radius, mv by qb, what is the periodic time, 2 pi m upon qb, what is the frequency of the circular motion, qb upon 2 pi m, जो पहला पढ़ा मोस्ट टाइम पे। दूसरा, radius of the circular path depends upon momentum, but frequency and periodic time independent of momentum. Ready? Next, whenever velocity of particle is parallel to magnetic field or anti-parallel to magnetic field, then
then particle performs linear motion, straight line motion because no force. And third very IMP, whenever velocity of particle makes an arbitrary angle, any arbitrary angle with magnetic field, then particle performs combined motion of linear as well as circular. It is called helix or helical path or helical motion. Whenever particle performs helical motion, then there are two components of velocities are responsible: v parallel, v perpendicular. V parallel, it is responsible for linear motion. V perpendicular, it is responsible for circular motion. And what do you mean by pitch? It is the linear distance between two consecutive, you can see that points of helical motion. तो ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने का जो इसको कहते हैं पिच. सो पिच सिंपली लिनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी एक साइकिल पूरा और दूसरे साइकिल तक. सो पिच यानी लिनियर डिस्टेंस यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड ऑलरेडी v cos थीटा, ये चिकना केस, क्योंकि इधर लिनियर डिस्टेंस तो v cos थीटा से जो हो रहा है, और इधर आपने देखा रेडियस में हमने v परपेंडिकुलर लिया था बिकॉज ये सर्कुलर मोशन ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. 2.q भी और आंसर. तो ये मोस्ट टाइम पे पॉइंट था, ये जिसे कह सकते टेक्स्ट बुक, हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खंगाला. ये हमारा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट बना है. अगला लेक्चर जो 4 है वो इस चैप्टर का जिसे कह सकते जानदार शानदार लेक्चर बनेगा. ये तो है ही, ये नहीं आएगा तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा. बट इन नेक्स्ट पार्ट वी वुड लाइक टू कंसीडर वेरी आईएमपी क्वेश्चन. और मुझे लगता है कि मैं 4 और 5 दो लेक्चर सब अपन लोग इसमें रहेंगे, इसके हर एक पहलू को खंगालते हैं जेडब्ल्यू नीट वाइज. सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर दिस ऑल कंसेप्ट अबाउट वी कैन से द मोशन. ज्यादातर तो मैंने मुंह जबान इधर करवा ही दिया है, फिर भी इतना याद रखने का है, परपेंडिकुलर हो तो क्या हो, v perpendicular to magnetic field, v parallel to magnetic field, v anti parallel to magnetic field, or v make any arbitrary angle with b, then what happen. So you know that very well. ये लेक्चर को देखोगे मतलब सभी कंसेप्ट क्लियर. सभी कंसेप्ट में फर्स्ट और थर्ड यानी परपेंडिकुलर और हेलिकल पाथ वो न्यूमेरिकल्स में धूम मचाएंगे. अपन लोग ने आज बेसिक डिस्कशन किया, एनसीईआरटी को कवर किया. अगले लेक्चर में हम लोग जाएंगे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, हर एक शॉर्टकट को लिखेंगे और फिर हम लोग जानते हैं कि जेडब्ल्यू नीट की धूम मचाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये खास कर ही देना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. डोंट फॉरगेट, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव करने का बोर्ड में आ सकता है. सो बी अलर्ट अबाउट इट. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विथ वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई कैन से दैट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड जेडब्ल्यू नीट धूम. मिलते हैं दोस्तों.